بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، یہ دونوں آرگنائزیشن دیش کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ دونوں بھارت کے مسلمانوں کی مضبوط آواز ہے۔ جمعیت علماء ہند 100 سال پرانی تنظیم ہے۔ 1919 میں آزادی سے پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ بھارت کی آزادی کے لیے اس سنسا نے بے شمار قربانیاں دی۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جمعیت علماء ہند کے بغیر نامکمل ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا قیام بھی آزادی سے پہلے عمل میں آیا تھا، لیکن وہ حیدرآباد تک محدود ایک NGO تھی۔ آزادی کے بعد پھر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنی۔ پھر حیدرآباد سے باہر نکل کر 2014 میں AIMIM نے پورے دیش میں چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے 15-20 سالوں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی دیش کے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط آواز ثابت ہوئی ہے۔ سیاسی طور پر مسلمانوں کو قوت ملی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں سنستھا مسلمانوں کی آواز ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے، اور ان کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تنظیم کا لیڈر دوسرے تنظیم کے سربراہ سے ایگری نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی وچاردھارا میچ نہیں کھاتی ہے، تب بھی خاموش رہنا ضروری ہے، امت کے مفاد میں، دیش کے مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک کمیونٹی کے، کسی ایک آرگنائزیشن کے سربراہ پر جب آفت آتی ہے، ان کے اوپر تنقید آتی ہے، تو دوسرے کی طرف سے سپورٹ نہیں مل پاتا ہے۔ ان دنوں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کو BJP، RSS اور رائٹ ونگ کی طرف سے لگاتار ٹرول کیا جا رہا ہے، ان پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے ایک بیان کی وجہ سے ان کو غدار تک کہا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا، دیش کے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ مسلمان سر اٹھا کر عزت کے ساتھ نہیں جی سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے اندر قیادت نہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ایک خان لندن کا میئر بن سکتا ہے، تو بھارت میں کوئی مسلمان کیوں اس عہدہ تک نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ایک مسلمان وائس چانسلر تک بھارت میں نہیں بن سکتا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات۔ کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے، ایک خان ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی۔ قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ اپنی انکم کو کیسے بڑھایا جائے، اس لیے آج میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ایک شاندار ایپ سے جس کو مارکیٹ وولف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک SEBI رجسٹرڈ ایپ ہے جو انڈیا میں کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے یہاں پن ڈال کر لاگ ان کر لیا، بس فالو ٹرینڈ پر کلک کیا، اور یہ آپ کو پروفیٹیبل ٹرینڈز دکھاتا ہے جو بازار میں چل رہے ہیں، اور آپ ایک ہی کلک میں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں بہت چھوٹی انویسٹمنٹ اماؤنٹ سے بھی ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں، جہاں دوسرے ایپس پر آپ کو 3 گنا زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اس میں انبلٹ اسٹاپ لوز فیچر بھی ہے جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ جیسے ہی ٹریڈ ایک لوز لیول تک پہنچتا ہے، یہ خود اسٹاپ لگا دیتا ہے تاکہ آپ کا زیادہ نقصان نہ ہو، اور ان کا بروکریج بھی انڈسٹری میں ون آف دی لوویسٹ بروکریج ہے۔ دیکھیے پروفٹ ٹرینڈ کے حساب سے موو کر رہا تھا، میں نے اسٹاپ ٹریڈ کلک کیا اور بس 1306 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا اتنے کم سمے میں۔ اس پوری فیسلٹی کو آپ صرف 99 روپے کا لائف ٹائم فیس میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سب کموڈیٹیز بھی یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل، نیچرل گیس بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ وولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔
यह देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240 रुपया, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये और अब अक्टूबर में 57,580 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। मौलाना अरशद मदनी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उसका हवाला दिया। आजम खान के साथ होने वाली जुल्म व ज्यादती की उन्होंने मजम्मत की और आजम खान के लिए आवाज़ उठाई, और उनकी ये आवाज़, उनकी ये तकरीर बर्दाश्त नहीं हो सकी बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को, और उनकी तरफ से मौलाना के खिलाफ रिएक्शन आना शुरू हुआ। तो बात समझ में आती है कि क्यों वो गुस्सा है, वो तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नेताओं की तरफ से भी इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इसी तरह का, बल्कि बीजेपी के लोगों से ज़्यादा घटिया AIMIM के कुछ प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया, जो नाकाबिल बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। और आप सुनेंगे तो यकीनन आपको भी गुस्सा आएगा। पवन राव अंबेडकर AIMIM का एक स्पोक पर्सन है और टाइम्स नाउ जैसे टेलीविज़न चैनल की लाइव डिबेट में वो मौलाना अरशद मदनी की बात करते हुए 3 ऐसे जुमले बोल जाता है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। वो मौलाना अरशद मदनी के लिए बोलता है कि वो सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू हैं, लिफाफा वाले मौलाना हैं और दरी बिछवाने का काम उन्होंने किया। नहीं, अनुराग साहब सवाल का जवाब सुनिए। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते थे। एक मिनट प्लीज, मैं काउंटर करूं। सुन लीजिए। नहीं, अंबेडकर साहब मुझे एक चीज बताइए, आप ये नहीं अरशद मदनी जी के लिए ये कह रहे हैं, और अगर आप उनके लिए ये बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि क्या पहले की सरकारों में इनको फायदा होता रहा और अब वो फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो 2014 के बाद वाला रोना रो रहे हैं? नहीं, मैं इस विषय को फायदा हो रहा या नहीं हो रहा मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आप ये लिफाफा वाला जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कितना घटिया शब्द है, किस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन पवन राव अंबेडकर की तरफ से मौलाना अरशद मदनी के लिए, मौलाना अरशद मदनी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने सेकुलर पार्टियों के लिए पिछलग्गू होने का काम किया, दरिया बिछवाने का काम किया, लिफाफा वाले मौलाना हैं। इन लोगों को तारीख़ नहीं पता कि मौलाना अरशद मदनी की तारीख़ क्या है, जमीयत उलमा हिंद का इतिहास क्या है। और अगर देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए दी गई कुर्बानी के लिए बातचीत की जाए तो जमीयत उलमा हिंद का इतिहास कल भी रोशन था, आज भी रोशन है। आरएसएस भी दूर दूर तक वहाँ नज़र नहीं आएगी, AIMIM भी वहाँ दूर तक नज़र नहीं आएगी। और अगर बात है सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करने की, कांग्रेस के साथ एक तरह से मुसलमानों का अलायंस बनाने की, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी कांग्रेस के साथ अलायंस रहा है। AIMIM ने हुकूमत में शिरकत की है कांग्रेस के साथ, आज भी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ AIMIM का कांग्रेस के साथ मजबूत रिश्ता है, मजबूत इत्तेहाद है। अभी हाल ही में हैदराबाद की जुबली हिल असेंबली सीट पर बाईपोल इलेक्शन हुआ और उस बाईपोल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। इस चुनाव में ये जीत हासिल करने के लिए जो मदद किया, MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ओर से हम धन्यवाद बोलना चाहता है। तो अगर आपके नेता, आपके लीडर अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ नजर आते हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप हैदराबाद में कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, आपका MLA कांग्रेस के साथ ज्वाइंट डेलीगेशन का हिस्सा बनकर मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरबिया गया एक हादसे के बाद, तो आपको कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात की, कांग्रेस की हुकूमत के दौरान उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तो आपको दिक्कत, आपको एतराज़, और आप उनके लिए इस तरह के जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने हंगामा किया, एतराज़ किया, खुद मैंने भी ट्विटर पर इस हवाले से लिखा कि मौलाना अरशद मदनी भी मिल्लत की, कौम की मजबूत आवाज़ है, जमीयत उलमा हिंद का कंट्रीब्यूशन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों की मजबूत आवाज़ है। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई नेता ऐसा बोला है तो सफाई आनी चाहिए AIMIM की तरफ से कि क्या ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है या पार्टी इस
स्पोक पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, कोई कार्रवाई करेगी। बहरहाल रात को ही AIMIM यूपी के स्पोक पर्सन शादाब चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा कि इस शख्स का यानी पवन राव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है, उसने लाइव डिबेट में जो कुछ कहा है वो AIMIM का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, पार्टी उससे एग्री नहीं करती है, वो उसका निजी और ज़ाती बयान है और पार्टी ने उसको किसी भी टीवी चैनल पर जाने से AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर रोक दिया है। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल पेज से भी शादाब चौहान की इस वीडियो को रिलीज किया गया। आप देखिए। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। पवन राव अंबेडकर द्वारा दिया गया बयान उनके ताल्लुक से उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी तमाम उलमाए इकराम का एहतराम करती है और बैरिस्टर ओवैसी साहब के हिदायत पर पवन राव अंबेडकर को किसी भी टीवी कार्यक्रम में जाने पर रोक लगा दी गई। तो आपने सुना शादाब चौहान को, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऑफिशियल पेज से उसको शेयर करके तो कह दिया, साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनकी पार्टी इस तरह के बयान से एग्री नहीं करती है। लेकिन सवाल यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी लीडर इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर शौकत अली ने भी इसी तरह का बयान अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और बताया कि मौलाना अरशद मदनी के बयान का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सिर्फ इस हुकूमत में मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया गया, बल्कि पिछली हुकूमत में या कह लीजिए आज़ादी के बाद कंटिन्यू मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। शौकत अली साहब की बात सच है कि सिर्फ बीजेपी ने मुसलमानों को यहाँ तक नहीं पहुँचाया, बल्कि आज़ादी के बाद ही सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों को सियासत से दूर रखा गया, मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी नहीं दी गई, मुसलमानों को धीरे धीरे सभी हुकूमतों ने कमज़ोर किया। लेकिन अगर पिछली हुकूमतों में मौलाना अरशद मदनी के या जमीयत उलमा हिंद के कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं तो AIMIM के भी कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज भी तेलंगाना में AIMIM के साथ कांग्रेस के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो सिर्फ एक लीडर को टारगेट करना और अपने ऊपर जब बात आए तो पल्ला झाड़ लेना या अपनी बात ना करना, ये कम्युनिटी को, कौम को गुमराह करने की कोशिश है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम स्पोक पर्सन को गाइडलाइन जारी करे, हिदायत जारी करे कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी तक पवन राव अंबेडकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, इसको पार्टी से हटाया भी नहीं गया है। सिर्फ इतना कहा गया कि AIMIM इस बयान से एग्री नहीं करती है, ये उस बंदे का निजी बयान है और टीवी चैनलों पर प्रवक्ता के तौर पर जाने से रोक दिया गया है। इसको प्रवक्ता के ओहदे से हटाया नहीं गया है, पार्टी की सदस्यता भी इससे नहीं ली गई है, जबकि AIMIM को हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है, मजहबी तबके का वोट मिलता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, उसके फॉलोवर सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो मदरसा से जुड़े हुए हैं, जो मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग दीनी शऊर रखते हैं। आप ओवैसी साहब की किसी भी रैली को उठा करके देखिएगा, वो सीमांचल की रैली हो या दूसरे इलाकों की रैली हो, उन सब जगहों पर उनकी रैलियों में हमेशा उलमा नज़र आएंगे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले नज़र आएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हमेशा दाढ़ी में रहते हैं, टोपी पहनते हैं और मुसलमानों को इससे फ़ख्र का एहसास होता है, मुसलमानों को मजबूती मिलती है, क्योंकि भारत में लड़ाई मुसलमानों की मजहबी शनाख्त से है। भारत में हमला मुसलमानों के मजहबी शियार पर है और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब मुसलमानों का जो मजहबी शियार है उसको अपनाते हैं तो मुसलमानों को फ़ख्र महसूस होता है और इसलिए मुसलमान उनके साथ नज़र आते हैं। और जब एक मजहबी शियार रखने वाले, हिंदुस्तान की तारीख़ में अहम किरदार निभाने वाले आलिम दीन और कौम के सबसे बड़े रहनुमा के ख़िलाफ़ अगर कोई नेता इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा तो मानना है कि उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन सख्त एक्शन होना चाहिए, फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई और पार्टी होती और उस पार्टी के या उस कम्युनिटी के इतने अहम तरीन रहनुमा के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता तो फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता। हैरत की बात यह है कि जो बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं वो इससे अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे स्पोक पर्सन और नेता हैं जो मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के ख़िलाफ़ हैं, मौलाना अरशद मदनी के बयान की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो मौलाना अरशद मदनी के लिए इस तरह के घटिया जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि पिछलग्गू हैं, लिफाफा वाले हैं या वो दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी
महाराष्ट्र चुनाव के बाद मौलाना सज्जाद नुमानी के लिए जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया था वो जुमला बेहद ख़तरनाक था, अफसोसनाक था। उन्होंने ही मौलाना सज्जाद नुमानी की तरफ इशारा करते हुए लिफाफा वाला मौलाना कहा, ये जुमला इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनकी पार्टी के लीडर्स भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आलिम दीन अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा से एग्री नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह का महाज खोल दिया जाए या उनकी शान में गुस्ताखी की जाए। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और मुख्तलिफ लोग मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं। हर एक की क़यादत का, हर एक की लीडरशिप का अलग अलग अंदाज़ है। कोई सियासी तौर पर मुसलमानों को मजबूत कर रहा है, कोई समाजी मैदान में मुसलमानों को मजबूत कर रहा है, कोई मजहबी नुक्ते नज़र से मुसलमानों को गाइड कर रहा है, कोई समाजी मैदान में मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है, कोई तालीमी मैदान में मुसलमानों को आगे बढ़ा रहा है, कोई मीडिया के मैदान में मुसलमानों की क़यादत कर रहा है। तो अलग अलग शोबे में लोग काम कर रहे हैं और तमाम लोगों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, तमाम लोगों का यूनाइट होना ज़रूरी है ताकि आपस में कोई इंतशार ना हो। और कोई भी कौम उसी वक्त तरक्की करती है, कोई भी कौम उसी वक्त आगे बढ़ती है जब उनके अंदर इत्तेहाद होता है, अलायंस होता है, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक वीडियो हैदराबाद की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने इदारा की जानिब से हैदराबाद में एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जिसका टाइटल था, उन्वान था, हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का किरदार। इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, दूसरे उलमाए किराम भी मौजूद थे, कई सारे MPs को भी बुलाया गया जैसे इमरान मसूद को, चंद्रशेखर आज़ाद को और भी लोगों को, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं जा सके। कारी सुहैब जो RJD के मिल से है वो भी वहाँ मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी शानदार और अच्छी तकरीर की, लेकिन तकरीर के दौरान कुछ ऐसा बोल गए जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी भी पाई जा रही है। अब सुनिए इस क्लिप को। कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को। अब यहाँ भी लोगों का एतराज़, लोगों का कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े जिन लोगों ने दहशतगर्दी में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपने घर पर अमोनियम नाइट्रेट रखा, यकीनन उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है? यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है? दहशतगर्दी एक अलग मामला है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक अलग मामला है। यहाँ ओवैसी साहब ने सीधे सीधे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी मदरसे में बम बनाया जाता है या किसी तालीमी इदारे में, कॉलेज में बम बनाया जाता है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आज तक कोई भी एक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है जो ये साबित करती हो कि किसी मदरसे में कोई बम बनाया जा रहा हो या किसी कॉलेज में जो मुसलमानों का हो वहाँ बम बनाया जा रहा हो या वहाँ कोई धमाका खेज मवाद रखा गया हो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिन डॉक्टरों को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, जिन डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम है 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के सामने बम ब्लास्ट करने का या सुसाइड अटैक करने का, वो सब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ज़रूर थे, लेकिन धमाका खेज़ मवाद उनके घर पर मिला था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर नहीं मिला था, अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं मिला था, या अल-फलाह यूनिवर्सिटी डायरेक्ट उसकी इंतज़ामिया, उसकी मैनेजमेंट इसमें मुलव्विस हो, इसका भी अभी तक एजेंसी ने कोई दावा नहीं किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीक़ को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फ़्रॉड के इल्ज़ाम में या हवाला के इल्ज़ाम में, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में
टेरर केस में जवाद सिद्दीकी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, इस मामले में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, वो आपस में मुत्तहिद रहें, यूनाइट रहें। इस देश के मुसलमानों को, हिंदुस्तान को जमीयत उलमा हिंद की भी ज़रूरत है, इस देश के मुसलमानों को AIMIM की भी ज़रूरत है। और अगर आपस में मुत्तहिद रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर हंगामा होगा, एक दूसरे पर तनकीद की जाएगी, तो उस मौका पर साथ देना ज़रूरी है। और पवन राव अंबेडकर जैसे शख्स के ख़िलाफ़ तो एक्शन होना निहायत ही ज़रूरी है। AIMIM के जो लीडर्स है वो भी इसके ख़िलाफ़ है। एडवोकेट मुफ्ती उसामा नदवी है, उन्होंने भी रात अपना एक बयान जारी किया। मिल्लत टाइम्स ने भी उसामा नदवी का बयान जारी किया, जिसमें उनका साफ कहना है कि मैं पवन राव अंबेडकर के इस बयान से एग्री नहीं करता हूँ। मौलाना अरशद मदनी मारूफ आलिम दीन है, बुजुर्ग रहनुमा हैं, और उनके हवाले से इस तरह का बोलना, इस तरह का ख्याल रखना सरासर अफसोसनाक और गलत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जा करके हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।